Hello everybody. Today I have come up with video for explaining part 3 of our chapter 6 Security in the Contemporary World. So in today's topic I will be covering with you non-traditional notion, internal and external both basically, and new form of threat, that is terrorism. So let us start with our explanation. Now we are going to start with another important topic. We have done traditional notions. Now we are starting with non-traditional notions. In traditional notions we have done external and internal factors, and now we are going to start with non-traditional notions. Now in non-traditional conception, referent is expanded. I told you what is referent. Referent means security for who? Security किसके लिए? Fine. When we ask security for who, it means it's not just the state. Security सिर्फ state के लिए या country के लिए या government के लिए नहीं होनी चाहिए. It should also be for the individuals and the communities living in the country. The individuals and the communities, they are more important according to this non-traditional notions. So security issues should not only be discussed for the country, for the government, for the territory. It should also be discussed for the individuals and the different communities who are living in a country. Now this non-traditional notion can be divided into human security or global security, विच मीन्स आई हैव टोल्ड यू रेवरेंट है जो, वो स्टेट नहीं है, वो इंडिविजुअल्स है, वो सिटीजन्स है, सिटीजन्स को बचाना है. ठीक है. सो ऑन दैट बेसिस वी हैव डिवाइडेड इट इनटू ह्यूमन सिक्योरिटी एंड ग्लोबल सिक्योरिटी. नाउ इन दिस सिक्योरिटी थ्रेट नो गोज बियॉन्ड मिलिट्री अटैक. सिर्फ ये नहीं है कि मिलिट्री अटैक हो गया तो वो ही एक थ्रेट होता है. इन दिस नॉन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट we have to protect citizen or individual from threats and dangers which affect their existence. लोगों की ज़िंदगी कैसे चल रही है, लोग कैसे जी रहे हैं, उनको क्या चीज़ें मिल रही है, किस चीज़ से उनको खतरा लग रहा है, हमें इन चीज़ों को इस नॉन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में डिस्कस करना है. और ये ही एक एक्चुअल थ्रेट है ह्यूमन बींग्स के लिए. Now I told you it is divided into human security and global security. So let's first of all discuss what is human security. Basically, human security is about protection of people more than the protection of states. Means इसमें state को importance नहीं देनी. The more importance has to be given to the citizens or the people who are living in a country. Now, protecting citizen from foreign attack may be necessary condition for security of individual, but it is not certainly the sufficient one. Now, normally we say security क्या है? अपने लोगों को बाहर foreign country के attack से बचाना. आई डोंट से कि वो बचाना ज़रूरी नहीं है, वो बचाना भी ज़रूरी है, बट सिर्फ वो ही एक सिक्योरिटी है, ये चीज़ कहनी गलत होगी. लोगों को फॉरेन अटैक से बचाओ, बट इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है. सो ऑल दोज थिंग्स विल कम अंडर ह्यूमन सिक्योरिटी. During last 100 years, more people have been killed by their own government than by their foreign armies. Now we have seen, I have told you, foreign के अटैक से बचाना ज़रूरी है, बट सिर्फ foreign के अटैक से बचाना है ये एक पर्पस नहीं होना चाहिए सिक्योरिटी का. नाउ एग्जाम्पल में प्रैक्टिकल लाइफ में ये देखा गया कि पिछले 100 सालों में 100 ईयर्स में जो ज़्यादातर लोग मरे हैं वो किसी फॉरेन अटैक से नहीं मरे. दे आर बीन किल्ड बाय देयर ओन गवर्नमेंट्स. अपनी ही कंट्री की गवर्नमेंट ने लोगों को मरवाया है. सो दिस इज़ द फैक्ट जो आजकल हम डिफरेंट कंट्रीज़ में देख रहे हैं. द प्राइमरी गोल ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल. नाउ देयर आर डिफरेंसेस अबाउट फ्रॉम व्हाट दैट इंडिविजुअल शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम. अपने इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करना है, पर प्रोटेक्ट किस चीज़ से करना है दैट विल सी. अब इसके दो कंसेप्ट है, एक नैरो एक ब्रॉड. नैरो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ह्यूमन सिक्योरिटी, इंडिविजुअल शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वायलेंट थ्रेट और इंटरनल वायलेंस. कंट्री में कोई सिविल वॉर चल रहा है या लड़ाई चल रही है या आपस में लोगों के झगड़े हैं, उस चीज़ से बचाना, ये नैरो कंसेप्ट है. और ब्रॉड कंसेप्ट क्या है?
थ्रेट क्या है? जब भूखमरी हो, हंगर हो, बीमारी फैली हो, डिजीज़, जैसे आजकल कोरोना वायरस स्प्रेड हुआ है, इवन दिस इज़ अ थ्रेट टू द लाइफ ऑफ पीपल. Natural disasters, because these things kill people more than any war. कोई बॉम्ब फेंकना या जेनोसाइड या मास किलिंग से ज़्यादा ये जो चीज़ें हैं, दैट इज़ भूख, बीमारी, नेचुरल डिज़ास्टर्स, हंगर, ये सारी चीज़ें लोगों को ज़्यादा मारती हैं. तो ये ह्यूमन सिक्योरिटी का ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है. ओके, सो सिक्योरिटी पॉलिसी शुड प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम बोथ दिस. अब ये इट इज़ नॉट लाइक दिस दैट वी हैव टू चूज़ कि नैरो कंसेप्ट आएगा कि ब्रॉड कंसेप्ट आएगा. सिक्योरिटी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिसमें नैरो और ब्रॉड कंसेप्ट दोनों को कंसिडर किया जाए. ना तो वायलेंट थ्रेट्स होने चाहिए, ना हंगर, डिजीज़ और नेचुरल डिजास्टर से लोगों को कोई थ्रेट हो. सो दीज टू थिंग्स शुड बी कंसिडर्ड. इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज फ्रीडम फ्रॉम वॉन्ट. जो फर्स्ट वन है फ्रीडम फ्रॉम वॉन्ट एंड सेकेंड वन फ्रीडम फ्रॉम फेयर. ये जो हंगर डिजीज़ है ये है फ्रीडम फ्रॉम वॉन्ट. हमारी क्या ख्वाहिशें हैं, उससे आज़ादी की कोई ख्वाहिश ही नहीं, बिकॉज वी आर गेटिंग एवरीथिंग. एंड सेकेंड फ्रीडम फ्रॉम फियर. फियर मीन्स लड़ाई झगड़े से जो हमारे मन में डर रहता है, उससे आज़ादी. ये होगा रियल मीनिंग ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी. ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. इन दिस वी हैव डन ह्यूमन सिक्योरिटी है क्या. इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करना है, फॉरेन से तो करना है, इंटरनली भी करना है. इसमें एक नैरो कॉन्सेप्ट आया जिसके अकॉर्डिंग वायलेंट या वायलेंस से प्रोटेक्ट करना है, और एक आया ब्रॉड कॉन्सेप्ट जिसमें हंगर, डिजीज़ और नेचुरल डिजास्टर से ह्यूमन बींग को प्रोटेक्ट करना है. ओके, नेक्स्ट वन वी है ग्लोबल सिक्योरिटी. ग्लोबल मीन्स पूरे वर्ल्ड का. ओके, नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी इमर्ज्ड इन 1990s. ये अभी न्यू कॉन्सेप्ट ये 1990s में आया है. व्हेन वी वर फेस्ड विद ग्लोबल इश्यूज, ग्लोबल थ्रेट्स जैसे ग्लोबल वार्मिंग, इंटरनेशनल टेररिज्म, हेल्थ एपिडेमिक्स लाइक एड्स, बर्ड फ्लू, सो ऑन, कि एक कोई ऐसी चीज़ जो पूरे वर्ल्ड को इफ़ेक्ट कर रही है, जो उसका थ्रेट है, सिक्योरिटी से हमें उस थ्रेट से बचना है इन ग्लोबल सिक्योरिटी. नाउ वी नो कंट्री इज़ देयर इन द वर्ल्ड. कोई भी ऐसी कंट्री है नहीं है जो कोई भी जो ग्लोबल इशू है, चाहे ग्लोबल वार्मिंग है, टेररिज्म है या हेल्थ एपिडेमिक्स है लाइक एड्स, बर्ड फ्लू, कोरोना वायरस, कोई भी कंट्री अकेले इनसे नहीं लड़ सकती. फाइन, किसी भी कंट्री में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये पूरे ग्लोबल इशू को वो अकेले सॉल्व कर दे. सो ऑल द कंट्रीज दे हैव टू गेट टुगेदर टू फाइट विद दिस ग्लोबल प्रॉब्लम्स. चाहे इन्वायरमेंट की है, चाहे वार्मिंग की है, चाहे राइजिंग लेवल ऑफ सी है, चाहे कुछ भी कोई भी ग्लोबल प्रॉब्लम है, ऑल द कंट्रीज दे हैव टू गेट टुगेदर, तभी इसका कोई सॉल्यूशन निकल सकता है. सो एज दिस प्रॉब्लम्स आर ग्लोबल इन नेचर, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इज इम्पॉर्टेंट इवन दो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव. चाहे हम बहुत सालों से ग्लोबल वार्मिंग के लिए लड़ रहे हैं, वी आर फाइटिंग फॉर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, राइजिंग लेवल ऑफ सी, या बीमारियों से लड़ रहे हैं ना, सभी कंट्रीज़ को कोऑपरेट करना पड़ेगा. इट इज़ नॉट ईजी टू अचीव. ये नहीं कि एकदम से रिजल्ट्स आ जाएंगे, बट स्टिल ऑल द कंट्रीज दे हैव टू कोऑपरेट एंड दे हैव टू वर्क ऑन द कॉमन प्लेटफॉर्म टू eradicate these all global issues by performing or by enacting the global security. So I hope this non-traditional notion is clear to you. So over here I end up with this traditional security issue and non-traditional security issue with their subparts. Let us proceed further to the last topic. Now next topic is new source of threat, terrorism. Although we have many sources of threat, but this new source, terrorism, it is a global threat and it needs to be combated in a very positive way. Means by the countries, they should cooperate with each other to combat this terrorism. This is a new source of threat which has spread its wings throughout the globe, throughout the countries. Now what is terrorism basically? It refers to systematic use of brutal force. Systematic means planned. Brutal force means brutally they use their force and they create an atmosphere of fear in the mind of people and society. फोर्स का ऐसे यूज़ करते हैं, ऐसे प्लान करते हैं एंड दे एक्ट इन सच अ वे कि एक लोगों के मन में, सोसाइटी के मन में एक फियर, एक डर भर देते हैं. इट इज़ यूज फॉर मैनी पर्पसेस, वेरी प्रोमिनेंटली द पॉलिटिकल एंड रिलीजियस पर्पसेस. अब ये बहुत
सारी चीज़ों के लिए दिस टेररिज्म इज़ बीइंग यूज, पर प्रोमिनेंटली सबसे ज़्यादा ये टेररिज्म का यूज़ किन चीज़ों के लिए होता है? एक तो पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ कंट्री, टाइप ऑफ गवर्नमेंट वगैरह चेंज करवाने के चक्कर में, या रिलीजियस पर्पसेस, फॉर एग्जांपल इस्लामिक फोबिया एंड ऑल, इस्लाम को लेके इन सब चीज़ों के लिए दिस टेररिज्म इज़ created. Or not only in Islam, like Khalistan, over there also certain terrorists, they are being there who use force so that whatever objectives they have in their mind वो उसको किसी ना किसी तरीके से पूरा कर सके. Then it refers to political violence that targets civilians deliberately means जानबूझ के and indiscriminately. इसमें वो कुछ ऐसा करते हैं कि जो सिविलियंस है, कॉमन पब्लिक है, उनको टारगेट बनाते हैं. दे आर किल्ड इन लार्ज नंबर्स ताकि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आए और उनकी जो डिमांड्स है, विशेज़ है, ख्वाहिशें, वो पूरी की जाए. इंटरनेशनल टेररिज्म इन्वॉल्व मोर देन वन कंट्री. नाउ नॉर्मली दिस टेररिज्म इज़ इंटरनेशनल. ये सिर्फ इट इज़ नॉट लिमिटेड टू वन कंट्री, इट हैज़ स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड. Terrorist group try to change the political condition that they do not like by force or by threat. Civilian targets are usually chosen to terrorize the public and to use happiness of the public as weapon against national government or other parties in conflict. It means that कि जो terrorists होते हैं वो कंट्री की जो पॉलिटिकल कंडीशन है, आई टोल्ड यू टाइप ऑफ गवर्नमेंट या जो वर्किंग हो रही है कंट्री में, एंड दे डू नॉट लाइक, उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं. चेंज करने के लिए क्या करते हैं? सिविलियंस, कॉमन पब्लिक को टारगेट बनाते हैं, बॉम्बिंग कर देते हैं, उनको मार देते हैं, कभी ट्रेन में, कभी रेस्टोरेंट्स में, कभी सिनेमा हॉल, पब्लिक गैदरिंग एरियाज़ में, ताकि जो उस कंट्री की गवर्नमेंट है वो उसके ऊपर एक इन्फ्लुएंस और एक प्रेशर आए और वो उनकी बात माने. द क्लासिक केस ऑफ टेररिज्म, अब ये एग्जाम्पल्स है, कुछ प्लेन्स को हाईजैक कर लेते हैं, बॉम्ब्स प्लांट कर देते हैं ट्रेन्स में या कैफ़ेज़ में या मार्केट में या और कोई भी क्राउडेड प्लेस है, पार्क वगैरह, रेस्टोरेंट्स है, सिनेमा हॉल्स है, कहीं पे भी दे प्लांट द बॉम्ब्स सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितने लोग मरेंगे उतना ज़्यादा गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आएगा. Now, since 11 September 2001 terrorist attack, America and other governments and public have paid more attention to terrorism. Now, you know the complete story of 9/11, how America they had terrorist attack, कैसे 4 planes को hijack किया गया, कैसे अलग अलग buildings पे उन planes को crash किया गया, and how the people they got killed in America. और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बाकी कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट्स हैं उस अटैक के बाद, 9/11 अटैक के बाद बाकी कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट्स हैं, सबके माइंड में वो जो एक टेररिज्म है उसको लेके दे स्टार्टेड पेइंग मोर अटेंशन दैट इट इज़ अ वर्स्ट फॉर्म ऑफ थ्रेट विच द वर्ल्ड इज़ फेसिंग टुडे. Okay, now this terrorism it has 3 broad meanings. We'll be doing one by one. The first one is, it is a systematic use of terror. I told you systematic means the proper planning is there. Use of terror of involuntary, especially as a means of coercion. Coercion होता है by force. ठीक है, तो टेरर का यूज़ करते हैं involuntary, not voluntary, यानी कि कोई भी that terrorist group only, especially as a मीन्स ऑफ कोएशन, मतलब कोई भी चीज़, कोई भी काम धक्के से करवाने के लिए, फोर्सफुली करवाने के लिए दे यूज़ दिस terror in the form of terrorism. Now, second broad category of terrorism could be violent acts which are intended to create fear of terror perpetuated for religious, political, ideological goal and deliberately target on this regard the safety of non-combatant civilians. Means एक डर क्रिएट करना अपने रिलीजियस या पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल मीन्स उनकी अलग एक सोच होती है कि वर्ल्ड ऐसा होना चाहिए, वो पूरी ना हो तो दे कीप अ टारगेट इन देयर माइंड कि हमें अटैक कर करके वर्ल्ड को इस तरह का बनाना है. ओके, सो दे डेलिबरेटली अटैक. डेलिबरेटली मीन्स जानबूझ के नॉर्मल सिविलियंस, नॉर्मल लोगों को अटैक करते हैं और नॉन कॉम्बैटेंट्स आर द सिविलियंस ओनली, इन्हीं को अटैक करते हैं सो दैट गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री या जिस रिलीजन को लेके उन्होंने अटैक किया, they should fulfill the demands of the terrorist. Third one is act of unlawful violence and war.
they act in such a way, it is not lawful, it is not allowed. No country says कि violence should be done in such a way. कोई international organization इसको allow नहीं करता है, इसको recommend नहीं करता है. So it is unlawful violence and war, ultimately war. Like we say कि India and Pakistan, they have many issues जिसके कारण उनमें वॉर रहता है. एंड दिस टेररिज्म इज़ ऑल्सो वन इशू बिकॉज इंडियंस दे से दैट टेररिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान दे कम टूवर्ड्स कश्मीर एंड नो दे ट्राई टू डिस्टर्ब द पीस ऑफ द वैली. कश्मीर को की जो पीस है वहाँ ख़राब करते हैं एंड देन दे अटैक द आर्मी. इंडियन आर्मी उनको अटैक करती है और कुछ लोग उनके मारे जाते हैं, कुछ इंडियन आर्मी के. सो वायलेंस एंड वॉर कीप ऑन गोइंग इन दिस टेररिज्म. ओके, देयर इज़ नो single country in the world that does not suffer from terrorism. We cannot say कि कोई भी country world में ऐसे जिसमें terrorism ने कभी step in ही नहीं किया, कभी वहाँ पे effect आया ही नहीं. चाहे neighboring country में आया हो, neighboring country में भी अगर attack हुआ है तो उसका effect भी आपके ऊपर आएगा. Maybe by trade, maybe by spread of culture, कुछ भी लगा लो, ठीक है. Although some countries they have tried to divide terrorism into good and bad terrorism. कुछ countries ने तो terrorism को good और बैड टेररिज्म में डिवाइड किया हुआ है. बिकॉज कई बार टेररिस्ट व्हाट दे डू, दे ट्राई टू अचीव द सच ऑब्जेक्टिव जो उनकी कंट्री भी कहती है कि हाँ ये चीज़ तो होनी चाहिए, तो उनके लिए वो टेररिज्म हो गया गुड टेररिज्म. और जो उनके अगेंस्ट गया, कंट्री को जो चीज़ नहीं पसंद है टेररिस्ट ने वो कर दी, देन दे से इट इज़ अ बैड टेररिज्म. बट इंडियाज़ करंट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, ही हैज़ क्लियरली सेड कि टेररिज्म कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू गुड एंड बैड. टेररिज्म को आप गुड एंड, टेरर क्या है, डर क्रिएट करना. टेरर का मतलब ही डर क्रिएट करना, लोगों में को उनको अटैक करना, उनमें डर क्रिएट करना ताकि वो ज़िंदगी ही ऐसे स्पेंड करें. फाइन. सो अकॉर्डिंग टू नरेंद्र मोदी देर इज़ नो गुड एंड बैड टेररिज्म. टेररिज्म मीन्स टेररिज्म, इट इज़ नॉट गुड टेररिज्म, इट इज़ ऑलवेज बैड ओनली. सो इट इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू हिम. ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है एंड ऑल द कंट्रीज दे शुड कम टुगेदर टू कॉम्बैट दिस टेररिज्म. टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ को इकट्ठे होकर आना पड़ेगा. ओनली देन दिस टेररिज्म कुड बी कंट्रोल्ड. सो दैट्स ऑल रिगार्डिंग द चैप्टर. And I hope you are clear with all the topics, and these are the only topics which are covered according to your new syllabus. That is security, its types, that is traditional and non-traditional notion, and after that we have the corporation techniques जो की गई हैं, like disarmament, arms control and confidence building, and last one this new form of threat जो पूरे वर्ल्ड को घेर के बैठा हुआ है, टेररिज्म. ओके, सो दैट्स ऑल रिगार्डिंग द चैप्टर. आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू. With this, I finish up with the chapter. So the contents which we have covered in this chapter till now are security, its types, in which non-traditional notion and traditional notion are there. Then after that, we have done this traditional notion and corporation, and last one new type of threat, that is terrorism. So these were the contents which we need to cover in this chapter, and hopefully you all have watched the videos carefully. Thank you so much.